سرائے نورنگ میں خواتین اور بچوں کے لیے اسپتال 17 سال بھی مکمل نہ ہو سکا ہے، مریضوں کو بنو منتقل کرنا پڑتا ہے۔ عوام نے اسپتال فوری مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انور زمان کی رپورٹ دیکھیے۔ لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ کے لیے منظور شدہ ویمن اینڈ چلڈرن اسپتال کی تعمیر تاخیر کا شکار ہے۔ فنڈز ہونے کے باوجود منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ حکومت یہی مطالبہ ہے کہ یہ اسپتال جو چلڈرن اور خاص کر وومن کے لیے بن رہا ہے، اس کو جلد از جلد بننا چاہیے، کیونکہ ہمیں بہت سنگین مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یا جو خاص کر اور سیریس بچے ہوتے ہیں اس کو بنو اسپتال لے کے جاتے ہیں، جو ہمارے لیے جو نا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک طرف وومن اینڈ چلڈرن اسپتال نہ ہونے سے مریضوں کو سرائے نورنگ سے بنو منتقل کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف ویمن اینڈ چلڈرن اسپتال کے لیے مختص سول اینڈ پولیس اسپتال کی پرانی عمارت بھی متعلقہ حکام کی عدم دلچسپی اور غفلت کی وجہ سے پرائیویٹ کالونی میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو یا بنو کے بڑے اسپتال میں لے جاتے ہیں علاج کے لیے، یا ڈی خان لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے راستے میں۔ لہٰذا ہم اپنے حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس کی تعمیر اور اس کی سٹاف کے لیے مکمل پالیسی اپنائے۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منظور شدہ ویمن اینڈ چلڈرن اسپتال کی تعمیر کو جلد از جلد ممکن بنایا جائے تاکہ شہریوں کو صحت کے حوالے سے درپیش مسائل حل ہوں۔ دنیا پور میں ڈی پی او کی نگرانی میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کارروائیاں، 15 سے زائد گداگر گرفتار کیے جا چکے ہیں، مزید پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے۔ مزید جاننے کے لیے نمائندہ آج نیوز چودھری زاہد محمود سے بات کرتے ہیں۔ جی چودھری زاہد محمود۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او عبدالرؤف بابر کی نگرانی میں پیشہ ور گداگاروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع ہو چکی ہے۔ سرکل بھر کے مختلف تھانوں میں جو ہے اس وقت 15 سے زائد جو ہے گداگر گرفتار ہو چکے ہیں، جنہوں نے عوام کا جینا دوپر کیا ہوا تھا۔ گداگروں کی گرفتاری پر جو ہے عوام نے ڈی پی او لودھرا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ڈی پی او عبدالرؤف بابر کی طرف سے یہ بہت اچھا اقدام کرا گیا ہے، جو گداگروں کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا ہے کہ ڈی پی او کا بڑا آسان اقدام ہے۔ اس وقت 15 سے زائد گداگر تھانوں میں جو گرفتار ہے، مقدمات کا اندراج بھی ہو چکا ہے، مزید کارروائیاں جاری ہے۔ ڈی پی او کے اقدام کو شاہد نے سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو ہے آپریشن بلا امتیاز جاری رہنا چاہیے۔ عارف والا میں نجی فلاحی ادارے کی زیر اہتمام یتیم بچوں کی کفالت کے لیے یتیم خانہ قائم، بچوں کو ضروریاتی زندگی کی تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ رپورٹ کریں گے رانا محمد نفیس علی قادری۔ والا میں یتیم بچوں کی کفالت کے لیے قائم کیا گیا یہ ہے دارالفلاح آرفن ہاؤس، جو جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ ادارے کے سربراہ سعید احمد شیخ کے مطابق دارالفلاح آرفن ہاؤس پچھلے 8 سالوں سے کام کر رہا ہے، جس میں یتیم اور بے سہارا بچوں کے اعلیٰ تعلیم و تربیت اور بہترین رہائش کا بندوبست کیا ہے۔ یہاں پہ صرف یتیم بچے اور بے سہارا بچے ہیں، اور یہ شہر کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں ہم، اور بہترین یونیفارم، جو بھی اچھی سے اچھی سہولیات ہم دیتے ہیں۔ دارالفلاح آرفن ہاؤس کے زیر کفالت یتیم ننھے بچے بھی اس کفالت سینٹر میں بہترین سہولیات ملنے پر مطمئن ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اور یہاں پہ اساتذہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، مارتے بھی نہیں ہیں، سب بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ والدین کی احساس محرومی معصوم بچوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے دارالفلاح آرفن ہاؤس میں زندگی کی تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ بدین میں وابڈا کی ممکنہ نجکاری کے خلاف ہیسکو ملازمین نے احتجاجی دھرنا دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عمران عباس سے۔ جی عمران عباس، کیا تفصیلات ہیں اس سلسلے میں آپ کے پاس؟ بالکل، ہیسکو کی نجکاری کے خلاف ہیسکو ملازمین نے اس وقت بدین میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور دھرنا دیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے جو ملازمین ہیں ان کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں کیے جاتے، اوپر سے ہیسکو کی بھی نجکاری کی جا رہی ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ مزدوروں کو کوئی فیسلٹی نہیں دیتے، لیکن جو بھی آتا ہے ہمارے مزدور کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے۔ اسی مزدوروں نے اس وابڈا کے لیے تمام قربانیاں دی، اپنی جانیں گنوا جاتا ہے، لیکن پبلک کو وہ بجلی پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ملازم کام کر سکتے ہیں، ہمارے بندے شہید بھی ہوئے ہیں، مگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی ہے، وابڈا کو پرائیویٹ کرنے جا رہی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہیسکو کی نجکاری کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو ہیسکو ملازمین کے جائز مطالبات ہیں ان کو بھی فوری تسلیم کیا جائے۔ بصورت دیگر یہ دھرنا جو ہے وہ حیدرآباد، پھر کراچی اور پھر اسلام آباد میں بھی جاری رہے گا۔ جی
ठट्टा का रुख करेंगे। ठट्टा में वापडा के हेस्को, लेस्को और दीगर इदारों की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने हेस्को ऑफिस मकली से कौमी शहरा मकली तक रैली निकाली है और रैली में हेस्को मुलाजमीन ने शिरकत की है। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे अमर लाल से। जी अमर लाल। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ठट्टा में भी वापडा निजकारी के खिलाफ वापडा यूनियन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। ये कौमी शहरा पर धरना दिया गया है। इनका यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान वापडा को निजकारी करने के लिए हर वक्त कोशिशों में होते हैं। ये मुख्तलिफ साजिश के तहत वापडा के मुलाजिम को बेरोजगार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ मुल्क भर की तरह ठट्टा में भी हम एहतजाज कर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, IMF के कहने पे इदारों की निजकारी करना इसने शुरू कर दिया है। हम इस अमल के खिलाफ सख्त मजम्मत कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम अपने कायदीन साईं अब्दुल लतीफ निज़ामी के सरबराही में कर रहे हैं। ये आज यहाँ खाली नहीं है ठट्टा में, ये पूरे पाकिस्तान में है। हमारा ये मुतालबा है कि वापडा की निजकारी बंद की जाए, उसको प्राइवेट नहीं करने हम देंगे। ये थे वापडा के मुलाजिम के यही केस हुई। सदरन केस के 2100 से ज्यादा मुलाजिम को भी बरतरफ किया गया है। अब वापडा को निजकारी के बाद वापडा के मुलाजिम को भी बरतरफ किया जाएगा। इस अमल के खिलाफ हम सरापा एहतजाज है और ये हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक इस अमल को नहीं रोका जाएगा। टंडो मोहम्मद खान के इलाके सचलाबाद में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने के बायस 2 माह से गंदा पानी सड़कों पर जमा होने से गंदगी के ढेर लग गए हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अंसार से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान शहर के इलाके सचलाबाद में, जहां पर ड्रेनेज और सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और यहाँ पर कई फुट पानी जमा है, जबकि गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं। 2-2.5 महीने हो गए, ये बरसातें आती है, भर जाता है, फिर दोबारा 1-2 मरतबा पानी निकाला भी है, फिर उसके बाद फिर ये पोजीशन। अभी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया ये काम चल रहा है। बरसात आई है, उसके बाद पानी चल रहा है लगातार। ये महीना 1.5 हो गए, बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। बस ये कोई है ही नहीं, कोई से बारिश शुरू हुई, हमसे यही हाल है। हमारी अगर मैच वगैरह होती है फिर भी हम यहाँ से पानी से निकालते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल नहीं जा सकते, हम रास्ता किराए से लेते हैं, उस पर भी बहुत मसला है। ये बहुत 2-3 महीनों से यही मसला है। ये पूरा सा गटर बड़ा हुआ है, नाले बंद हो गए, हमारे पास कोई भी सहूलत नहीं है। हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस सरदार को और हमारे जो MNA उसको गुजारिश करते हैं, खुदा रहा ये काम जो सही कर दिया जाए हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए। पानी कितना चढ़ा हुआ है, इलाके में कितने गंदे ढेर लगे हुए हैं, 100 बीमारियां आ रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हैं, आने जाने का मुसीबत है। सचलाबाद के मकीनों का आपने कहना सुना, इनका यही कहना है कि यहाँ पर ना तो सफाई का अमला आता है और ना ही मुंतखब नुमाइंदे कोई तवज्जो देते हैं, जिसके बायस इनके इलाके की सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं। इन्होंने मुंतखब नुमाइंदों और आला हुक्काम से फौरी तौर पर नोटिस लेने और मसले को हल करने का मुतालबा किया है। जलालपुर पीरवाला शहर के मसरूफ तरीन मुल्तान रोड पर सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे मुजफ्फर अयास ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के मुल्तान रोड पर। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुल्तान रोड की हालत इंतहाई खस्ता है और बहुत ज्यादा परेशानी के बहस बन रहे हैं, मुख्तलिफ हादसात हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर गटर का उबलता हुआ पानी रोड पर है। जो इलाके मकीन है, जो नजदीकी दुकानदार हैं, वो शदीद परेशानी में और अजियत में मुब्तला है। मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। गुज़िश्ता 15-20 दिन से ये हाल है। यहाँ का सीवरेज का पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। जो कस्टमर आता है वो अंदर नहीं आ सकता मार्केट के अंदर। जो बाइक पे आता है वो स्लिप होकर गिर जाता है। और ये टीएमओ को हमने बारहा टीएमओ को कहा है कि इसको मसले को हल करें, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई जा रही, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है दुकानदारों को। और ये टीएमओ की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। 1 महीने से पानी इकट्ठा हो रहा है, ना गाहक आ रहे हैं, दुकानदार बहुत परेशान है। समझ आ गई, TMO को बार बार कहा है, कोई सुनाई नहीं करता है। समझ आ गई। इस पर इनका यही कहना है कि इंतजामिया को बार बार कहने के बावजूद ये मसला हल नहीं हो रहा और फौरी तौर पर इंतजामिया को चाहिए मसला हल करे, ताकि जो दुकानदार हैं, जो राहगीर हैं, वो अजियत से बच सकें। जी, कराची के इलाके गुलशन मेमार में बैंक से रकम लाने वाले शख्स को 3 मुसल्लह मुलजिमान ने लूट लिया। मुलजिम लूट मार के बाद बाआसानी फरार हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान जलीस, क्या तफसीलात हैं इस लूट मार के वाकये की?
मोनिस, बिल्कुल ये गुलशन मेमार का इलाका है जहां पर मुसल्लह मुल्जिमान ने जो है वो बैंक के बाहर पहले जो है वो वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। जब शहरी बैंक से रकम लेके निकला उसका ताक़ुब किया और कुछ फासले पे जाके जो वो शहरी को लूटा है। 3 लाख से ज्यादा की रकम बताई जाती है जो कि शहरी के पास मौजूद थी। वारदात की CCTV फुटेज आज न्यूज ने हासिल की है जिसमें वाज़ेह तौर पर मुसल्लह डाकों को जो है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा दीगर मुकामात पे भी जो है वो लूटमार की वारदातों का सिलसिला जारी है। बेशतर मुकामात पे जो है वो वारदातें रोज का मामूल है, लेकिन ये गुलशन मेमार का इलाका है जहाँ पर बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटा है और CCTV फुटेज में मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ तीनों मुसल्लह मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। तफसीलात बता रहे थे फैजान जलील, शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका गजर, चारों तहसीलों की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आवाम और सयाहों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। की चारों तहसीलों की जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही है। इस वक्त मैं गुपिस के अहाते में मौजूद हूँ। यहाँ की सड़क भी मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल हो चुकी है, लेकिन इस सड़क की मरम्मती काम न होने की वजह से अवाम को आमदरफ्त के सिलसिले में सख्त मुश्किलात का सामना है। लेकिन न तो इस रोड की मरम्मती काम हो रहा है और न ही इसकी देखभाल हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुसाफिर आ रहे हैं, जो मुसाफिर गुजर रहे हैं, इनको सख्त मुश्किलात का सामना है। सयाहों की बड़ी तादाद ने भी डिस्ट्रिक्ट गिजर का रुख कर दिया है और यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में सयाह पहुंच चुके हैं, लेकिन सड़कों की खासताली की वजह से यहाँ के अवाम और सयाहों को सख्त मुश्किलात का सामना है। यहाँ के अवाम मुतालिबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर गिलगित चतराल रोड को एक्सप्रेस वे बनाया जाए ताकि सयाहों की बड़ी तादाद इस खित्ते का रुख कर सके। जी, जंग में जिला इंतजामिया की जानिब से करोड़ों रुपए मालियत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स फाल न होने से ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया है। जंग से रिपोर्ट करेंगे वहीद मलिक। जंग में चंद माह कबल ट्रैफिक की रवानी के लिए करोड़ों रुपए मालियत से शहर के मसरूफ और अहम चौकों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए, जो तरबियत याफ्ता अमला तैनात न किए जाने के बाइस बंद हो गए और मुसलसल 2 माह से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है और शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से इशारे तो लगाए गए हैं, लेकिन ये कभी भी चालू नहीं हुए, हर वक्त ये बंद रहते हैं। बेहंगम ट्रैफिक से हादसात मामूल बन चुके। स्कूलों की छुट्टी के औकात में ट्रैफिक मुलाक हो जाती है, जबकि ट्रैफिक का अमला भी अक्सर गायब रहने लगा। शहरियों ने इंतजामिया से ट्रैफिक सिग्नल फाल करने और ट्रैफिक की रवानी के लिए इक़दाम अमल में लाने का मुतालबा किया है। हमारे पास इशारे तो लग गए हैं, लेकिन इन पे कुछ अमल नहीं हो रहा। काफी टाइम गुजर गया अब तो, इसकी वजह से हादसात में भी इजाफा हुआ है। हमारी दरख्वास्त है कि हुकूमत इस पे अमल करवाए। अगर मसरूफ चौकों में ट्रैफिक सिग्नल फाल कर दिए जाएं तो बिलाशुबा ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी लाई जा सकती है। वहीद मलिक, आज न्यूज, जंग। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में वजीर सेहत ने 4 करोड़ की लागत से बनने वाली नई OPD की इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। तमाम शोबाजात को सर्जिकल आलात तकसीम किए गए। सहूलियात मिलने पर आवाम खुश हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमनाज खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहाँ पर आज वजीर सेहत ने न्यू OPD का जो इफ्तिताह किया, इसके साथ साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो डॉक्टरों में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर तकसीम किए गए। यहाँ पर वजीर सेहत ने दौरा भी किया। दूसरी जानब हमने देखा था कि इससे कबल जो OPD की बिल्डिंग थी वहाँ पर मरीजों के लिए कोई बैठने के लिए जगह नहीं थी, ना ही डॉक्टरों के लिए। तो OPD न्यू तैयार होने की वजह से जो है वो डॉक्टरों के बैठने के लिए और मरीजों के बैठने के लिए भी जगह होगी। कोरोना वार्ड, ICU वार्ड और दीगर जगहों पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वजीर सेहत ने विजिट भी किया और डॉक्टरों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानब जब हमने यहाँ पर वजीर सेहत से बात की तो उनका ये कहना था कि महदूद वसाइल में रहते हुए हम जो है वो अस्पतालों की जो रेविनेशन है उनको करेंगे और अस्पतालों को बेहतर करेंगे और अद्वियात की फराहमी और आम आदमी के जो मसाइल हैं उसको हल करेंगे। जी, खानेवाल के हुनरमंद नौजवान मैट्रिक के तालिबे इल्म हसन नदीम ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए 2 माह के अरसे में मोटरसाइकिल के इंजन से गाड़ी तैयार कर दी। गाड़ी 20 मन वजन उठाकर 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। देखते हैं खानेवाल से मोहम्मद अशरफ गांधी की ये रिपोर्ट। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस मिसरा के मिस्दाक खानेवाल के नवाही इलाका 79 दसार के रहायशी नौजवान हसन नदीम ने मोटरसाइकिल के इंजन से गाड़ी बना डाली। हसन नदीम ने इस गाड़ी में 70 सीसी मोटरसाइकिल का इंजन नस्ब किया है, जो कि 20 मन वजन उठाकर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बासानी दौड़ सकती है। माशाल्लाह आज मैंने जीप बना ली है और अगर इस पे
वजन की बात की जाए तो वजन तकरीबन 20 मन तक उठा कर ले जाते हैं। पेट्रोल की एवरेज की बात की जाए तो तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर इसकी लीटर में एवरेज है। मैट्रिक के स्टूडेंट हसन नदीम के मुताबिक इस जीप को तैयार करने पर 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। महंगाई के इस दौर में गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा भी निहायत ही मुनासिब है। हसन नदीम का गाड़ी तैयार करने का मकसद माजूर और मुतवसत तबके के अफराद को कम खर्च पर गाड़ी फराहम करना है। मजदूरों के लिए मेन टारगेट हमारा मजदूरों के लिए है जो कि मोटराइज होगा, उसका खर्चा भी कम है। होनहार तालिब इल्म हसन नदीम के वालिद राव नदीम कहते हैं कि बासलाहियत नौजवान ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी तैयार करके हुनरमंदी की मिसाल कायम की है। हसन की उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो सब अपनी जो टैलेंटेड सलाहियतें हैं उनको रोजगार लाएं और इस किस्म के प्रोडक्टिव कामों में हिस्सा लें। वालदैन के लिए, अपने इलाके के लिए बायस फख्र हों। अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो कम लागत से गाड़ियां तैयार करके मुतवसत तबके को फराहम की जा सकती हैं। हुकूमत अगर हसन जैसे बच्चों की सरपरस्ती करे तो इस किस्म के बच्चे पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज खानेवाल। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।